بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بے غیرت کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ بابا جی کہتے ہیں، دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ دنیا کی سب سے بھاری چیز آدمی کی خالی جیب ہوتی ہے، اور خالی جیب کے ساتھ چلنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی محتاج نہ کرے۔ سزائیں بن جاتی ہیں گزرے ہوئے وقت کی یادیں، نہ جانے کیوں مطلب کے لیے مہربان ہوتے ہیں لوگ۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ کس قدر خوفناک اور بھیانک ہے کہ اکثر وہ ذہنی مریض جنہیں ہسپتالوں میں ہونا چاہیے، لوگوں کے مذہبی پیشوا بن کر مشکل کشا بنے بیٹھے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ مرادیں پانے کے لیے ان کے قدموں میں۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ اشفاق احمد سے کسی نے دریافت کیا، آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو آپ نے جواب دیا، کربلا کے بعد سنی شیعہ ختم ہو گئے، بس حسینی اور یزیدی رہ گئے، اور میں خدا کے فضل سے حسینی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے، اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ میں نے جب اس دنیا پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ نیکیوں سے محبت کروں تاکہ وہ مجھے قبر میں بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن آدم کی نظر کبھی نہیں بڑھتی، دنیا کی ساری عورتیں اپنی بنا کر ایک بچتی ہوگی تو یہ اس آخری عورت سے بھی شادی کرنے کو بے قرار ہوگا کہ شاید یہ دوسری عورتوں سے مختلف ہوگی۔ اس کی نظر کبھی نہیں بڑھتی، اس کی عمر کا اس کی نظر پر صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ کسائی کی طرح مزید تجربہ کار ہو جاتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا، کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے، دل ٹوٹے گا بھی اور ہرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا اپنا ہے، کس کی محبت کو چنتے ہیں۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ بچوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انہیں جسمانی سزا نہ دیں، بلکہ آج کے دور کی ڈیجیٹل سزا دیں۔ ان کے موبائل اور چارجر الماری میں بند کر کے تالا لگا دیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں ایمان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ اس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ غلطیاں بھی ہوں گی اور غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے، یہاں تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ ان چیزوں کے بارے میں غمزدہ ہونا چھوڑ دیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اللہ کے کاموں اور فیصلوں میں حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ سے اپنا غم کہہ دیں، خوشیاں آپ کے در پر
दस्तक देने लगेंगी। अल्लाह पर भरोसा करना सीखें और अपने ईमान को मजबूत बनाए रखें और सब्र रखें, ये सोच कर कि ये दुनिया फ़ानी है और यहाँ हर चीज़ आर्जी है, सबको मिट जाना है और फिर ये दुख दर्द क्या है। सोबत उनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते शर्मिंदगी महसूस हो। इस्लाम सच्ची मोहब्बत की तायद करता है जो चंद दिनों में महदूद और चंद तोहफ़ों की मोहताज ना हो, बल्कि हमेशा के लिए हो, और सिर्फ़ जिस्मानी ना हो बल्कि रूह की भी तस्कीन हो, और पाकीज़ा हो, और वो सिर्फ़ निकाह में ही हासिल होती है। बानो कुदसिया कहती हैं, हो सकता है तुम जो मांग रहे हो वो पहले ही से तुम्हारी किस्मत में लिखा गया हो, और ये दुआ सब्र और इंतज़ार तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देने के लिए करवाया जा रहा हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दी ना करे कि कहने लगे कि मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाज़ें जुमा दूसरे जुम्मे तक और रमज़ान दूसरे रमज़ान तक अपने दरमियान वाले गुनाहों का कफ़ारा बनते हैं जब तक बड़े गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर्दी का मौसम मोमिन के लिए मौसम बहार है। इसके दिन छोटे होते हैं जिनमें वो रोज़े रख लेता है, और इसकी रातें लंबी होती हैं जिनमें वो क़याम कर लेता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तू नमाज अदा करे तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझकर अदा कर, और ऐसा कलाम मत कर कि इससे कल तुझे माजरत करना पड़े। नीज़ जो कुछ लोग के पास है इसे मुकम्मल नाउमीद और गनी हो जा। हम अक्सर इन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, और इन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। अपने वालिदैन, अहले खाना और मुखलिस लोगों की कदर करें इससे पहले कि हम इनसे महरूम हो जाएं। हज़रत अबू सईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में एक आग का पहाड़ है जिसका नाम सऊद है। काफिर इस पर 70 साल में चढ़ेगा और फिर इतनी ही मुद्दत में गिरता रहेगा और हमेशा इसी अजाब में रहेगा। दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों की असल जुदाई वो होगी जब वो आखिरत में जुदा कर दिए जाएंगे, एक जन्नत में और दूसरा जहन्नम में। एक दूसरे की आखिरत की फ़िक्र किया करें, यही असल मोहब्बत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, नेकी के एवज़ नेकी हक अदायगी है और बदी के एवज़ नेकी एहसान है। जो मेरा रब है वो मेरा सब है। ज़िंदगी गुजरने के साथ साथ ये एहसास शिद्दत पकड़ जाता है कि मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे रब ने की, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा बेवफ़ाई अपने रब से की। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, आहिस्ता बोलना, नीची निगाह रखना और मियाना चाल चलना ईमान की निशानियाँ हैं। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। नज़रों की हिफाजत। जुरैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजनबी औरत पर अचानक नज़र पड़ जाने के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी नज़र फेर लो। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियाँ हों वो झोंपड़ी में भी हंसते हैं। कांटे। अगर तुम ज़िंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें इसी रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। हैरत और ताज्जुब की बात है, हम बेटी की निस्बत से दामाद को बेटा मान लेते हैं, लेकिन बेटे की निस्बत से बहू को बेटी क्यों नहीं मानते। है खालिक़े कायनात, जिन मुश्किलों और परेशानियों में हम मुब्तला हैं तो इन्हें अपनी शान करीमी से हल कर दें। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सच्चाई की सबसे सच्ची निशानी सादगी और वजाहत है। झूठ हमेशा पेचीदा होता है। पसंद और मोहब्बत। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो और इसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। और अगर आप इस फूल को रोज़ाना पानी देते हो और इसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है।
ज़िंदगी में खूबसूरती सिर्फ दुरूद शरीफ से है। अब जितना दुरूद शरीफ के करीब होंगे ज़िंदगी इतनी ही हसीन होगी। अब जितना दुरूद शरीफ के करीब होंगे दिल इतना मजबूत होगा। अब जितना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे दिल इतना खूबसूरत और वसी होगा। बस ज़िंदगी में ये काम कर लें, कोई चिल्ले वजीफ़े करने नहीं पड़ेंगे, ज़िंदगी खुद ही संवर जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। रिश्तेदारी में मुकाबला नहीं होता और जो मुकाबला करे वो अपना नहीं होता। रिश्ते मुकाबला करके नहीं बल्कि एक दूसरे की मजबूरियों और परेशानियों को समझकर निभाए जाते हैं। एक नौजवान सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। वो कुरान पाक पढ़ रहे थे। जब इस आयत पर पहुँचे तो बदन के बाल खड़े हो गए, रोते रोते दम घुटने लगा और कह रहे थे, हाय जिस दिन आसमान फट जाएंगे यानी क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा, हाय मेरी बर्बादी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे इस रोने की वजह से फरिश्ते भी रोने लगे। ऐ मुश्किलें आसान करने वाले रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी मुश्किलें आसान कर दे। हमें हर परेशानी, हर मुसीबत से बचा ले, हमें मोहताजी और ज़िल्लत से महफूज फरमा ले, हमें अपनी रहमत से माला माल फरमा दे और हमें शुक्रगुजार बंदा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। बद इख़लाक़ इंसान की मिसाल उस टूटे हुए घड़े की तरह है जो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। दीनी अमूर में मावन बीवी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन माल ये है कि आदमी के पास अल्लाह को याद करने वाली ज़बान हो, शुक्रगुजार दिल हो और इसकी बीवी ऐसी मोमना औरत हो जो इसके ईमान को पुख्ता तर बनाने में मददगार हो। रोज़ा अफ्तार कराने वालों का सवाब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई किसी रोज़ादार को अफ्तार करा दे तो इसको रोज़ादार के बराबर सवाब मिलेगा और रोज़ादार के सवाब में से कोई कमी नहीं होगी। रोज़ा अफ्तार करवाने वाले का सवाब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास अफ्तार किया और फरमाया, तुम्हारे पास रोज़ा रखने वालों ने अफ्तार किया और तुम्हारा खाना नेक लोगों ने खाया और तुम्हारे लिए फ़रिश्तों ने दुआ की। नज़रअंदाज। नफ्सियात की रूह से अक्सर किसी इंसान को जानबूझकर नज़रअंदाज करने की दो में से कोई एक वजह होती है। या तो आप उस इंसान से बेहद नफ़रत करते हैं या हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और जब आपका बस नहीं चलता तो आप बेबस होकर उसे नज़रअंदाज करते हैं, और ऐसा करके भी हम अज़ियत में खुद ही रहते हैं। बहस के दौरान जब किसी का राज फाश होने का डर हो तो अपनी हार मान लो कि बहस में तुम फिर कभी जीत जाओगे, मगर राज़े खुदा की और लोगों की अमानत होते हैं, एतबार हार दिया तो कभी कुछ जीत नहीं पाओगे। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, वो किसी गमज़दा के दिल में उम्मीद की किरण ला सकते हैं या वो उसे मज़ीद कर्ब में मुब्तला कर सकते हैं, इसलिए हमेशा इनको ज़हानत से मुंतखब करें। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूँ तो आप तसल्ली में आ जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे कह रहे हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ तो आप इसको मामूली क्यों समझते हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, है बिलाल तू इतनी मार सहता है, गर्म तपती रेत पर तुझे लेटा के जिस्म पे पत्थर रखे जाते हैं, अंगारों से तेरा जिस्म दागा जाता है तो फिर भी अहद अहद करता है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम मिट्टी का प्याला भी ख़रीदते हो ना तो उसको भी ठोक बजा के चेक करते हो कि कच्चा है या पक्का। मुझे भी मेरा रब देख रहा है कि बिलाल अंदर से कच्चा है या पक्का। जब आपको हर दूसरा शख्स दुश्मन लगने लगे, ऐसी सूरत हाल में असल दुश्मन बाहर नहीं आपके अंदर होता है और वो है आपकी मनफी सोच। अगर घर में एक भी शख्स हक पे है, सही फहम रखता है और सबके ईमान की फ़िक्र करता है, दिन रात दुआ और इस्लाह में मशगूल है, इसके ही बहुत से असरात होते हैं। हिम्मत से लगे रहना चाहिए। चिराग एक भी हो, गहरे अंधेरे दूर कर देता है। अल्लाह को दीन का वो अमल सबसे ज़्यादा पसंद है जिसको पाबंदी से किया जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम सवाब देने से अल्लाह नहीं उकताता, मगर तुम अमल करते करते उकता जाओगे। और अल्लाह को दीन का वही अमल ज़्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके। अल्लाह किसी से नाराज़ भी हो जाए तो इसका रिज़्क फिर भी बंद नहीं करता, बल्कि रफ्ता रफ्ता इससे सजदे और इबादत की तौफीक वापस ले लेता है। इसलिए अपनी निगरानी खुद करें। जिन पे आजमाइश है वो रहम मांगे और इस्तग़फ़ार करें, जो आफ़ियत में हैं वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह के बंदों के साथ रहम से पेश आएँ। इनकी हर मुमकिन मदद करें, क्योंकि आजमाइश इसकी भी होती है जो आजमाइश से दूर होता है।
جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے۔ کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ آئے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اس کی حکمت ہماری سوچ سے آگے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کریں کہ موسم بدلتے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں ہم اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، ہم صدقہ دینے کے لیے بلاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے، وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جب کوئی چیز تکلیف دہ آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو زندگی فرق ہو گئی نا۔ جسے لوگ جتنا زیادہ توڑتے ہیں، اللہ پاک اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط فرما دیتا ہے۔ سکون قلب آسائشوں کے حصول سے نہیں، اصلاح ایمان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے حاصل ہوتا ہے۔ اے رب رحیم، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، شیاطین کے شر، حاسدین کے حسد اور برے اعمال سے بچا، اور ہم سب کو سکون قلب عطا فرما۔ آمین۔